Today we will discuss about the interfacing of a 8085, and the microprocessor is a programmable integrated device that has computing and decision making capabilities. The word programmable specifies that the microprocessor can be inserted to perform different operations according to the given application. Any microprocessor based system or application has three basic components are as follows. First one is the microprocessor, second is the memory, and third one is the input output devices. The keyboard and the display devices are the example of input and output devices respectively. These two are main component of microprocessor based system. First one we will discuss about the display interfacing. Display devices are used by the microprocessor based system to provide the information from microprocessor to the external world. Most of the microprocessor based application display the letters of alphabets and the numbers to the users. The information can be displayed using different devices like as the CRT, LED, LCD, etc. CRT display is used to display a large number of amount of information for a small amount of data. Display we use LED and LCD can be used. Now we will discuss about LED display. What is the LED? LED is the light emitting diode display, all commonly available in 7 segment format. A 7 segment display, as its name indicates, is composed of 7 elements. This type of display are generally used as the numerical indicators and consist of the 7 LED as shown in the figure. 7 LED होंगी यहाँ पर आपका होगा A होगा, देन आपका यहाँ पर B होगा, C होगा, फिर ये D होगा, फिर E होगा, F होगा और यहाँ पर G होगा, और एक ये डॉट वाला HP होता है जिसका यूज हम डेसिमल में करते हैं. So this is the 7 segment display arrangement. The 7 segment of the display are labeled from A to G and dot is labeled as H. By lighting up the particular segment, a number of alphabet is displayed. The 7 segment display are of two types. First one is the common anode type and the second one is the common cathode type. Common anode means एनोड कॉमन होगा, उसमें कैथोड मतलब कैथोड को कॉमन कर देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होगा. इन कॉमन एनोड ऑल एनोड्स ऑफ एलईडीज आर कनेक्टेड टुगेदर, whereas in common cathode all cathodes are connected together. Interfacing circuit to drive a single 7 segment common anode LED display as shown in the figure. This is the 7447, this is the BCD2 7 segment IC, and ABCDEFGH terminal are connected through the resistance. This is the LED display interfacing. To interface LED display with microprocessor, an additional 7447 BCD to 7 segment decoder is required. The BCD to 7 segment decoder IC 7447 provides the signal on the segment to the LED. This kind of arrangement to display work properly for just one or two digits. When there are more number of digits, the power requirement may increase and the result has a decrement in the LED glow. The another problem which will be there is that each display digit required a separate BCD to 7 segment decoder IC 7447. यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी एलईडी को हम इंटरफेस कर रहे हैं किसी माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, तो एडिशनल हमें एक BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर की रिक्वायरमेंट है. 7447 नाम की जो है आईसी आती है यहाँ पर आपकी, और इस आईसी की हेल्प से मतलब आप जो है BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले करते हो, एलईडी डिस्प्ले करते हो. इस तरीका का जितना भी करो, वो अगर आपका एक डिजिट दो डिजिट की बात है तो वो वर्क करेगा प्रॉपरली. जब वहाँ पर मोर नंबर ऑफ डिजिट्स आर रिक्वायर्ड तो पावर रिक्वायर्ड इंक्रीज होगी आपकी, और रिजल्ट जो है वो डिक्रीमेंट होगा. डिक्रीमेंट किस में होगा? एलईडी की ग्लो, एलईडी का ग्लो कम होता चला जाएगा. द अनदर प्रॉब्लम क्या है वहाँ पर इज दैट द ईच डिस्प्ले डिजिट रिक्वायर्ड सेपरेट BCD to 7 सेगमेंट. तो हर एक नंबर के लिए, हर एक डिस्प्ले के लिए अलग अलग आईसी की 7447 की रिक्वायरमेंट है. उससे ओवरकम होने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले. To solve the problem occur with the LED display, multiplexed display are used. Multiplex display are the electronic display where entire display is not driven at a time. पूरा एंटायर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जो है ना वहाँ पर जो है नॉट ड्राइवन एट वन टाइम. फिगर 13.3 shows the 4-7 segment display connected in the multiplex method. यहाँ पर जो है 4-7 segment display कनेक्टेड हैं
जो ये 7 सेगमेंट की डिस्प्ले यहाँ पर कनेक्टेड है, किससे कनेक्ट है, ये 7447 BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर से कनेक्टेड है और रजिस्टर के थ्रू ही कनेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। और लेकिन ये मल्टीप्लेक्स टाइप में कनेक्ट है जी। इसमें क्या है, यहाँ पर एक आपका ट्रांजिस्टर यूज होता है, जिस ट्रांजिस्टर की हेल्प से आप जो है इसको एट ए टाइम ये माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होता है और एट ए टाइम एक ही डिजिट आप यहाँ पर डिस्प्ले कर पाते हो। तो इस वजह से यहाँ पर जो है एलईडी के ग्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Figure 13.3 shows that the 4 7 segment display with one BCD to 7 segment decoder, the microprocessor can select one 7 segment display through the transistor circuit. क्या कह रहा है ये, माइक्रो प्रोसेसर कैन सेलेक्ट 1 7 सेगमेंट डिस्प्ले, माइक्रो प्रोसेसर एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को जो है थ्रू द ट्रांजिस्टर सर्किट का उसको सेलेक्ट करेगा। इट मीन्स इन मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले द सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज सेंट, this means segment information is sent for all the digit on the common line but only one display digit is turned on at a time, बट एक डिजिट डिस्प्ले होगी एट ए टाइम। इन मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले द सेगमेंट करंट इज केप्ट बिटवीन 40 मिली एम्पियर टू 60 मिली एम्पियर सो डेट दे विल अपियर एज ब्राइट एज दे वुड इफ नॉट मल्टीप्लेक्स्ड। ठीक है ना, तो उनकी जो है मतलब जो ग्रो है वो एलईडी प्रॉपर्ली होता रहे। Next is the liquid crystal display LCD. LCD a liquid crystal display is a thin flat panel used for electronically displaying information such as the text, image and moving pictures. In LCD, each pixel consists of a layer of molecules aligned between two transparent electrode and two polarizing filters, the axis of transmission of which are perpendicular to each other. The LCD is finding widespread use by replacing the LEDs. एलईडी को रिप्लेसमेंट कर दिया इसने। इन जनरल एलसीडी आर मच लेस पावर देन द सीआरटी काउंटर पार्ट। द साइज ऑफ एलसीडी आर ऑल स्मॉल। In LCD there is no bulky picture tube, so the size of LCD is small. These factors may be the LCD's practical wear size and weight are important. ठीक है, द मोस्ट कॉमन एलसीडी कंट्रोलर इज द हितेशी 44780 विच प्रोवाइड ए सिंपल इंटरफेस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड और माइक्रो कंट्रोलर एंड एन एलसीडी। ठीक है, एक ICA 44780 जो एक सिंपल इंटरफेस है माइक्रो प्रोसेसर और एक एलसीडी के बीच में। द कॉमनली यूज अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले आर 1x16 सिंगल लाइन एंड 16 कैरेक्टर एंड सेकेंड वन इज द 2x16 डबल लाइन एंड 16 कैरेक्टर पर लाइन एंड 4x20 मीन्स 4 line and the 20 character per line as shown in the figure. 2x16 line LCD means there will be 2 line and 16 character in a single line. LCD pin description. Now we will discuss about the LCD pin description. LCD required 3 control pin RS, RW and enable and 8 4 data line. The number of data lines depends on the mode of operation. If operated in 8-bit mode, then 8-bit data lines are required. If the operation is 4-bit mode, then the 4-bit data line is required. 8-bit mode is faster than the 4-bit mode, and in 8-bit mode LCD use total 14 pin including 8 data lines and 3 control lines and 3 power supply lines VCC, VSS and VEE. यहाँ पर ये कह रहा है कि जो है नंबर ऑफ डाटा लाइन डिपेंड करेंगी कि मोड ऑफ ऑपरेशन कौन सा है। अगर आप 8 बिट मोड में आपको ऑपरेट कर रहे हो तो 8 बिट डाटा लाइन की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। 4 बिट मोड में आप काम कर रहे हो तो 4 बिट डाटा लाइन रिक्वायर्ड होंगे। अब 8 बिट मोड जो है वो फास्टर है आपका 4 बिट मोड से, और 8 बिट मोड एलसीडी में टोटल 14 पिन होंगी इंक्लूडिंग 8 डाटा लाइन्स। 8 डाटा लाइन होगी, 3 कंट्रोल लाइन होगी, 3 आपकी पावर सप्लाई की पिन होगी। बड़ा सिंपल सा है। पावर सप्लाई एलसीडी डिस्कस्ड हेयर यूजेज 3 power supply. First one is the VCC, second one is the VSS and the VE. VCC and the VSS pins are used to provide the plus 5 volt and the ground respectively, and the pin VE is used for controlling LCD contrast. LCD contrast के काम आ रही है कौन सी, VEE पिन आपकी। and the control lines, which one, there are 3 control lines in the LCD. These 3 are used to control the LCD operation. There are 2 very important registers inside the LCD, and there are 2 very important registers. 2 important registers हैं, first one is the command register and second one is the data register. The register select RS. RS pin is used to select the register out of these 2.
अब RS, if RS is equals to 0, then the command register is selected and user is allowed to send command to the LCD. And if RS is equals to 1, then the data register is selected and the data sent by the user is displayed on the LCD. एंड द रीड राइट, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, एक आपका कमांड रजिस्टर है, दूसरा आपका डाटा रजिस्टर है। अब RS जो पिन होगी वो सिलेक्ट करेगी कि कौन सा रजिस्टर है इन दोनों में से, कमांड रजिस्टर है कि डाटा रजिस्टर है। अगर RS की वैल्यू 0 है तो कमांड रजिस्टर सेलेक्ट होगा, यूजर अलाउ है टू सेंड द कमांड टू द LCD पे जो है यूजर अपनी कमांड को सेंड कर सकता है। RS इज इक्वल टू 1 है तो मतलब डाटा रजिस्टर सेलेक्ट है, तो डाटा सेंड होगा बाय द यूजर इज डिस्प्लेड ऑन द LCD. Read write, RW bar pin allow the user to read write the information data or code from the LCD. RW bar is equals to 1 if this pin is 1 when reading, and RW bar is equals to 0 when writing operation is performed. Another pin is enable pin. Enable pin is used to latch the data present on the data pins. A high low signal is required to latch the data. The LCD interprets and executes the command at the instant EN pin is brought low. Data pins are 8-bit data pins. D0 to D7 are used to send the information to the LCD or read the content of the LCD internal register. So this is the pin description. VSS will be the ground, VCC plus 5 volt supply, VE is the power supply to control the contrast, RS is used for the register select, and RW is the read write bar, and EN is the enable, and D0 to D7 is used for 8-bit data lines. तो बड़ा सिंपल सा पिन डिस्क्रिप्शन है। 14 पिन की आपकी आईसी है। 14 पिन में शुरू की 3 पिन आपकी पावर सप्लाई की हैं। पहली वीसीसी, वीएसएस, वीसीसी, वीई, वीएसएस आपका ग्राउंड होगा, वीसीसी प्लस 5 होता ही है, वीई पावर सप्लाई टू कंट्रोल द कंट्रास्ट, देन आरएस, आरडब्ल्यू एंड ईएन, आरएस रजिस्टर सेलेक्ट, रीड राइट और एनेबल पिन है, D0 to D7 आपकी डाटा लाइन है। बड़ा सिंपल सा पिन डिस्क्रिप्शन है। नाउ दिस इज द LCD कमांड वर्ड। देयर आर LCD कमांड्स, दोज can be sent to the LCD to clear the display or to shift to clear the display or to shift cursor from right to left or left to right or blink the cursor. To write the LCD command word in the command register, RS must be set is equals to 0 and RW bar is equals to 0. The LCD command are given in 13.2. अब आप LCD कमांड में कुछ भी जो है क्लियर करना चाह रहे हो डिस्प्ले को, कर्सर को शिफ्ट करना चाह रहे हो, ब्लिंक करना चाह रहे हो कर्सर को, या किसी भी तरीके की कमांड वर्ड जो है आप कमांड रजिस्टर में लिखोगे तो कमांड रजिस्टर RS आपका 0 होना चाहिए, रीड राइट बार आपका 0 होना चाहिए। नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन। हैक्स कोड जो है दिए हुए हैं 01, 02, 04 इस तरीके से आपके हैक्स कोड दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सिक्वेंस में दिए हुए हैं। 01 है तो आपका क्लियर डिस्प्ले स्क्रीन होगा, 02 है तो आपका रिटर्न होम होगा, 04 पर आपका डिक्रीमेंट कर्सर होगा, 06 पर आपका इंक्रीमेंट कर्सर होगा, शिफ्ट कर्सर यहाँ पर राइट टू लेफ्ट होगा तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट होगा, यहाँ पर शिफ्ट डिस्प्ले राइट है 05 पर, 07 पर शिफ्ट डिस्प्ले लेफ्ट है, डिस्प्ले ऑफ कर्सर ऑफ है 08 पर, 0A पर डिस्प्ले ऑफ कर्सर ऑन है, 0C पर डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ है, फिर 0E पर डिस्प्ले ऑन है कर्सर ब्लिंकिंग है, यहाँ पर 0F पर डिस्प्ले ऑन है कर्सर ब्लिंकिंग है अगेन, यहाँ पर शिफ्ट कर्सर पोजीशन टू लेफ्ट, शिफ्ट कर्सर पोजीशन टू राइट, and shift entire display to left, shift entire display to right, or force cursor to beginning of first line and force cursor of beginning of second line, and 2 line and 5x7 matrix 38। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है हैक्स कोड दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली LCD commands के correspondingly. LCD interfacing. LCD can be interfaced to the microprocessor 8085 using the programmable peripheral interface PPI 8255 IC. 8255 IC के थ्रू हम जो है LCD को इंटरफेस कर सकते हैं। To display letter and numbers, ASCII code for the letters A to Z and small a to Z, and number 0 to 9 is sent to the data line D0 to D7. These code may be sent to the LCD data lines through one port of 8255 PPI as shown in the figure 13.5। मतलब एक पोर्ट यूज कर रहे हैं हम जिसमें हम जो है ASCII कोड या मतलब आपके जो भी नंबर्स हैं वो डाटा लाइन्स के थ्रू हम जो है LCD पर डाटा सेंड कर रहे हैं। एक पोर्ट हमें 8255 का इसलिए यूज कर रहे हैं। In this figure, port A is used as the output port and send the data to the LCD.
एक पोर्ट ए है जो आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर रहा है और डाटा सेंड कर रहा है किसको, एलसीडी को। एंड द इनेबल पिन एंड आरएस पिन आर कनेक्टेड टू द पोर्ट बी, ये पोर्ट बी से कनेक्ट कर रखी हैं ऑफ द 8255। सिंस इट इज यूज्ड एज नॉर्मल डिस्प्ले, रीड राइट बार इज मेड लो by connecting to the ground directly, and the power supply connections are provided VCC and VSS pins, VCC plus 5 volt, VSS ground, and the VE pin is connected to the moving node of potentiometer which is connected to between the VCC and VSS pin. By moving the potentiometer, the contrast of LCD can be changed. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एलसीडी की इंटरफेसिंग कैसे करनी। एलसीडी की इंटरफेसिंग में कह रहा पावर पिन तो आपकी पता ही है कि +5 वोल्ट और वीसीसी कनेक्ट कर जाएगी, वी और वी के लिए ये कह रहा है कि वीसीसी और वीएसएस के बीच में एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दो, उस पोटेंशियोमीटर पे एक पिन वीई पे कनेक्ट हो जाएगी, एक वीएस पे हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जो ताकि हम कॉन्ट्रास्ट ऑफ एलसीडी को कंट्रोल कर सकें। एक पोर्ट ए यूज हो रहा है आउटपुट पोर्ट की तरह, जिससे कि हम सेंड कर सकें डाटा एलसीडी पर, और इनेबल पिन और आरएस पिन कनेक्ट कर दी हमने पोर्ट ए टू पोर्ट बी पर 8255 की, लाइक दिस। पोर्ट ए ये वाला आ गया आपका, यहाँ पर आउटपुट पोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये D0 टू D7 आपका कनेक्ट हो गया, तो यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन आप पास करोगे तो D0 टू D7 जो मतलब आपका इस डाटा लाइन के थ्रू यहाँ पर रीड और राइट जो भी ऑपरेशन आपको करना है। तो PB1 मतलब और PB0 में एक पिन आपने कनेक्ट कर दी इनेबल पर और दूसरी पिन कनेक्ट कर दी आपने RS पर। रीड राइट बार का कोई वो नहीं है यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर आपने राइटिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो इसको ग्राउंड कर दिया। तो VSS आपका ग्राउंड है ही ऑलरेडी, और VCC आपका +5 वोल्ट है यहाँ पर, और VE क्या करा हमने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बीच में कनेक्ट कर दिया VCC और VSS के बीच में। ठीक है, कीबोर्ड मैट्रिक्स इंटरफेसिंग कैसे कह रहा है। कीबोर्ड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस ऑफ एनी माइक्रोप्रोसेसर। फॉर इंटरफेसिंग कीबोर्ड ऑफ टू द माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम यूजुअली पुश बटन्स आर यूज्ड। दीज पुश बटन्स की व्हेन प्रेस्ड बाउंस ए फ्यू टाइम्स, closing and opening the contact before providing a steady reading. The microprocessor must wait until the key reaches to a steady state. This is known as the key debounce. ये क्या कह रहा है, की डिबाउंस कह रहे हैं जब तक कि वो मतलब हम माइक्रोप्रोसेसर वेट करता है अंटिल द की रीच टू द स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंच जाता, और ये प्रोसेस आपका डिबाउंस है। द प्रॉब्लम ऑफ की बाउंस कैन बी एलिमिनेटेड यूजिंग की डिबाउंस टेक्निक, आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसको दूर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एक इंटरफेसिंग दिखाई गई है। इंटरफेसिंग में भी अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसको गौर से देखने पे आपको पता चलेगा कि पोर्ट ए लिया है यहाँ पर, पोर्ट ए की 0 1 2 3 तीन पोर्ट ले लिए हमने। यहाँ पर जो है मैट्रिक्स बनाई, कितनी 4x4 की मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोर्ट बी भी ले लिया आपने, पोर्ट B0 टू B3 तक ले लिया। तो ये कुछ पुश बटन्स हैं आपके यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ABCDEF। तो टोटल यहाँ पर 4 × 4 16 आपके पुश बटन्स हैं यहाँ पर। ये आपके कॉलम है, ये आपके रो है। ठीक है, इनकी कनेक्टिंग कुछ इस तरीके से की गई, ये वायर आया और ये आया, ये यहाँ पर आपने क्या करा, VCC से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका पोर्ट बी जो है 4x4 की जो कीबोर्ड मैट्रिक्स हम इंटरफेसिंग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो अगर आप दो गौर से देखोगे तो ये सारी पिन आपकी किससे कनेक्ट है, VCC से कनेक्ट है, और यहाँ से जो कुछ आ रहा है जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये वाला आपका कनेक्ट हो जाएगा, जब इसको करोगे तो ये होगा। इस तरीके से जो है आपकी ये कीबोर्ड की इंटरफेसिंग है। एट द लोवेस्ट लेवल कीबोर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम। द माइक्रोप्रोसेसर एक्सेस बोथ रो एंड कॉलम थ्रू द पोर्ट। To connect an 8x8 matrix of key, 2 8-bit port are required. अगर 8x8 की मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या होगा, आपको 2 8-bit पोर्ट रिक्वायर्ड होंगे। Therefore the PPI 8255 can be used to interface an 8x8 matrix keyboard to the microprocessor. When a key is pressed, a row and a column make a contact, otherwise there is no connection between row and column. ऊपर अभी मैंने बताया था जब उसको बटन को प्रेस करेंगे तभी वहां पर रो और कॉलम का कनेक्शन होगा, अदरवाइज कोई कनेक्शन नहीं है। फिगर 13.6 shows an example of a 4x4 matrix keyboard with the microprocessor using port A and port B of 8255. A 4x4 keyboard matrix is connected to a port A
4x4 की कीबोर्ड मैट्रिक्स जो है किससे कनेक्ट हुई, पोर्ट ए से कनेक्ट हुई, पोर्ट बी ऑफ 8255 एंड द पोर्ट ए इज कंसिडर्ड एज द आउटपुट पोर्ट एंड पोर्ट बी एज द इनपुट पोर्ट, द रो आर कनेक्टेड द रोज आर कनेक्टेड टू पोर्ट ए, आउटपुट वाले से कनेक्ट है रोज जो है, एंड द कॉलम आर कनेक्टेड टू द पोर्ट बी इनपुट, ऑल द रो आर मेड लो, सारी रो जो है आपने लो बना रखी थ्रू द पोर्ट ए, इफ नो की हैज बीन प्रेस्ड रीडिंग द पोर्ट बी विल यील्ड वंस फॉर ऑल कॉलम सिंस दे आर कनेक्टेड टू द हाई वीसीसी, अगर कोई भी बटन आप प्रेस नहीं कर रहे हो तो वो सारी की सारी वीसीसी से कनेक्ट है तो वंस आपका आ जाएगा। इफ ए की इज प्रेस्ड वन ऑफ द कॉलम विल हैव लो सिंस द की प्रेस्ड प्रोवाइड द path to the ground. It is the function of microprocessor to scan and keyboard continuously to detect and identify the key pressed. कौन सी की आपकी प्रेस हुई है, ये उसका आपका माइक्रोप्रोसेसर का काम है। तो यहाँ पर ये एक बार और दोबारा से जो है समझने की कोशिश करते हैं, तो दोबारा से देख लो, ये आपका जो है ये रो हो गई और ये कॉलम हो गए, ये वाला पोर्ट ए आपका रो से कनेक्ट है, पोर्ट बी आपका जो है किससे, कॉलम से कनेक्ट है। अब ये पोर्ट बी जो है ये कॉलम प्लस वीसीसी, यहाँ पर गौर से देखो प्लस वीसीसी से कनेक्ट है, और ये वाली लाइन आपकी बिल्कुल सीधी सीधी कहाँ पर कनेक्ट है, ये पोर्ट बी पर कनेक्ट है। तो अगर यहाँ पर मैं कोई भी बटन यहाँ पर प्रेस नहीं कर रहा हूँ 048 और मतलब जो आपका 11 नंबर का जो पोर्ट ये पिन है, यहाँ पर अगर मैंने प्रेस नहीं की तो पीबी 0 पर क्या मिलेगा, हमें वीसीसी मिलेगा। अब मैं अगर यहाँ पर ये कोई भी की प्रेस करता हूँ, ये वाली की अगर मैंने प्रेस कर दी तो यहाँ पर कनेक्शन बन गया, और ये कनेक्शन क्या होगा कि यहाँ पर चलेगा, इसको ग्राउंड कर देगा और तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी की प्रेस नहीं है तो पोर्ट बी पर जो भी यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आपका 11111 मिलेगा आपको। जैसे जैसे प्रेस करोगे तो उसके कोरस्पोंडिंगली आप यहाँ पर आपका आउटपुट आता जाएगा। एक टाइम में एक की आपकी प्रेस होगी, जोन सी भी की प्रेस करोगे, जैसे ये प्रेस करी आपने तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट this is all about the 4x4 keyboard matrix interfacing, LCD and LED interfacing, and thank you so much. In next lecture we will discuss more about this.